آپ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں تھے آپ بغداد شریف کے رہنے والے ہیں۔ بغداد شریف کے آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا ہے تو آپ ان کے حکم سے آپ آئے۔ کتنے سو سال پرانا ہے؟ 750 برس پرانا ہے۔ مدھیہ پردیش کو جغرافیائی اعتبار سے جو علاقہ مہاراشٹر سے جوڑتا ہے اس میں نماڑ کا نام سر فہرست ہے۔ علاقہ نماڑ مدھیہ پردیش میں انتظامی نقطہ نظر سے مشرقی اور مغربی نماڑ میں منقسم ہے۔ مغربی نماڑ میں سناوت تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ سناوت کی تاریخ کافی قدیم ہے۔ یہاں کے قدیم باشندوں میں بھیل بھلالے اور آدیواسی بھی شامل ہیں۔ یہاں پر مسلم تہذیب کی نشوونما علاؤدین خلجی کے عہد سے شروع ہوتی ہے۔ مسلمان سناوت میں آنے کے بعد نہ صرف یہاں کی تہذیب میں رچ بس گئے بلکہ یہاں کی تہذیب کا ایک حصہ بنے کہ انہیں یہاں کی تہذیب سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ مغلیہ عہد میں سناوت کی ترقی بام عروج پر تھی۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب نے دکن جاتے وقت حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے نشیب میں جو کھلا میدان ہے یہیں پر فوجی اڈا ڈالا تھا اور اسی پہاڑی سے متصل ایک گاؤں آباد کر کے اسے اپنے شہزادی گلشن آرا کے نام سے منسوب کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سناوت کو تاریخ کے اوراق میں گلشن آباد کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں علاؤدین خلجی پہلا مسلم بادشاہ تھا جو دکن میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ علاؤدین خلجی نے 1296 میں دکن کے اہم قلعے دیوگیری کو اپنے قبضے میں لیا تھا اور 1298 میں اس نے نماڑ کے اہم قلعہ اسیر گڑھ پر قبضہ کیا تھا۔ علاؤدین خلجی نے 1305 میں مالوہ پر قبضہ کیا۔ اس طرح سے مدھیہ پردیش کے مالوہ اور نماڑ پر علاؤدین خلجی کا قبضہ ضرور ہو گیا، لیکن یہاں پر جس اسلامی تعلیم کی ضرورت تھی وہ حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے ہوئی۔ حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سرزمین عرب کے تاریخی شہر کنعان میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت 1260 عیسوی میں کنعان کے ایک سادات حسینی گھرانے میں ہوئی۔ آپ 7 سال کے ہی تھے کہ والدین نے بسلسلہ تجارت بغداد کا سفر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تعلیم اور ذہنی نشوونما بغداد میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد سید محمود قادری سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور بغداد کے جید علماء کی نگرانی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تحصیل علم کے بعد جب آپ کو معرفت کے لیے کسی ولی کامل کی ضرورت ہوئی تو آپ ممتاز عالم دین حضرت غوث جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ابھی آپ کی تعلیم و تربیت حضرت غوث جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں جاری تھی کہ آپ کی پیر و مرشد نے سرائے فانی سے پردہ کر لیا۔ پیر و مرشد کے پردہ کرنے کے بعد آپ معرفت کی تعلیم کے لیے اس عہد کے ممتاز عالم دین شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قادری قدس رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ پیر و مرشد سے آپ نے علوم شرعی، تفسیر، حدیث و فقہ کی تعلیم دستار فضیلت حاصل کر کے انہی کے دست حق پر بیعت کی اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی خدمت میں 17 سال گزارے اور پھر 45 سال کی عمر میں 1305 عیسوی میں آپ نے پیر و مرشد کے حکم سے ہندوستان کا سفر کیا۔ آپ بغداد سے سمرقند، بخارا، لاہور ہوتے ہوئے دہلی آئے اور دہلی میں محبوب الہی حضرت نعیم الدین اولیاء سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے بعد دکن کا سفر کیا۔ جب آپ دہلی سے دکن کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں چندیری اور برہان پور کے علماء سے ملاقات کی۔ آپ 1306 عیسوی کی ابتدا میں نماڑ کے اس مقام پر جہاں آپ کا آستانہ ہے جلوہ افروز ہوئے اور اس پہاڑی پر اپنی خانقاہ بنا کر تبلیغ اسلام کے کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ یہی پیغام دیا ہے کہ ہر مذہب، یہاں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر عقیدے کا لوگ، ہر مذہب کا، ہر فرقے کا لوگ یہاں پر زیارت کرنے آتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن دیکھنے میں اور زیادہ یہ آتا ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ یہاں پر زیادہ مزار کے اوپر آتے ہیں اور جو بھی منتیں ہوتی ہے اور وہ تو یہی ایک پیغام اس ملک کے اندر جو ہمارے یہاں بزرگان دین باہر سے آئے ہیں انہوں نے دیا ہے، اس ملک کے اندر امن اور سکون کا پیغام کے لیے یہ ظاہر مانے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت اور آج ہم موجود ہیں نماڑ کے سناوت میں۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کا فن تعمیر دور دور تک مشہور ہے۔ کیا ہے اس کا فن تعمیر یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ جائے گی دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔
सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा, शुबा अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। नाज़रीन, आज ईटीवी की टीम सनावद में मौजूद है और जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये आस्थाना हज़रत शाह जमालुद्दीन रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फन तामीर दूर दूर तक मशहूर है। क्या इसका फन तामीर? आइए डालते हैं एक नजर। मगरबी निमाड़ के तारीखी शहर सनावद को तो सभी जानते हैं, लेकिन तारीख के औराक में इसे गुलशनाबाद के नाम से भी याद किया गया है। सनावद मगरबी निमाड़ में 21 दर्जा शुमाल और 72 दर्जा मशरिक में खित्ते सरतान के नीचे वाक़ है। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई 1723 फीट है। सनावद को मुश्तरका तहजीब का शहर कहा जाता है। सनावद के लिए जब आप मालवा के तारीखी शहर इंदौर से जाएंगे तो 70 किलोमीटर के बाद पीराने पीर की पहाड़ी पर आपको एक खूबसूरत गुम्बद दिखाई देगा। ये खूबसूरत गुम्बद हजरत जमालुद्दीन शाह रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का है। इस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए सड़क का भी रास्ता है और जायरीन सीढ़ियों के रास्ते से भी जियारत के लिए जाते हैं। जायरीन 170 सीढ़ियों को चढ़ते हैं, इसके बाद उन्हें आस्ताने आलिया के दीदार नसीब होते हैं। आस्ताने आलिया का जो गुम्बद खास है उसकी तामीर कदीम है, जबकि दालान और बाहरी तामीर को 12 साल कब्ल अंजाम दिया गया है। इस आस्ताने को देखने के बाद आपको एक साथ कई आस्थानों की शबाहत का अंदाजा होगा। इसकी वजह यह है कि खुद्दाम दरगाह ने आस्ताने आलिया को जदीद कालिब अता करते वक्त मुल्क के मुख्तलिफ आस्थानों का दौरा किया, इसके बाद इस तामीर को अंजाम दिया। अंदर की तामीर कदीम है। नई तामीरात के बाद गुम्बद के एतराफ में 4 मीनारे तामीर किए गए हैं, जो दरगाह की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। गुम्बद के अंदरूनी हिस्से में आयत करीमा के साथ खूबसूरत बेल बूटे भी बनाए गए हैं, जबकि आस्ताने आलिया को 4 जानिब से खुला रखा गया है। कोई भी मौसम हो, आस्ताने के अंदर रोशनी भरपूर होती है। आस्ताने की तामीर के बारे में अकीदतमंद कुछ इस तरह से बताते हैं। ये तामीर करने के पहले और भी दीगर बहुत सारी दरगाह, हाजी अली, नागपुर में बाबा ताजुद्दीन और चित्तौड़ में चलफी शाह वली, बहुत सारी दरगाहों पे हमने जाके पहले देखा और उसके बाद में फिर ये नक्शा मुकम्मल किया कि भाई इस ढंग से इसको बनाया जाना चाहिए। बनाया गया और इसमें जो पुराना मज़ार तो अपनी जगह पर आज भी गुम्बद सहित कायम है और बाहर का जो हिस्सा है करीब 11-11 फीट ये चारों तरफ से बढ़ाया गया है, जो करीब 50 बाय 50 के अंदर है। इनकी कोई भी ये एक दूसरे की मेहराब साइज में नहीं है, फिर भी आप देखिए, आप कहीं से आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे चारों तरफ ग्राउंड के कंक्रीट किया है और ये रोड नहीं था, मतलब कच्चा रोड था,
तो इसमें सांसद निधि का भी पैसा लगा है और यहाँ ये रोड कुछ बना है हमारी तरफ से भी, और यहाँ जो जितना लगभग उस टाइम पे लगभग 18 लाख रुपए लगे थे, और ये पैसा कहीं भी इकट्ठा करने हम नहीं गए। यहाँ बाबा की पीढ़ी पे बैठते थे, सवेरे शाम तक जितना हम काम का टारगेट होता था, एक हफ्ते में जितना काम होना है उतना पैसा हमें होता था, इससे ज्यादा भी नहीं होता था, कम भी नहीं होता। ये वली की करामात है। निस्बत तो ये हुई है कि हम यहाँ पे मतलब सलीम सेठ के साथ में जब जुड़े हैं तो उनके साथ में ये तामीरी काम में हम जब आगे बढ़े ना इनके साथ में, तो फिर 2 साल तक हम यहाँ से मतलब गांव में नहीं गए, यहीं पे हम उनके साथ में तामीरी काम में जुड़े रहे। ये निस्बत है हमारी इनसे। ये कितना सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिला है जिंदगी में। बुजुर्गों से जो जुड़े ना हम, जब से हमें बहुत सुकून मिला है, तरक्की भी हुई है, और जो हिंदू मुसलमान की बात होती है वो बातें अब हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा काम है। अगर आप कहीं हजरत के आस्थाने तक नहीं पहुंच पाते, कहीं दूर होते, तो कैसी बेचैनी होती है? तो बेचैनी क्या हो, तो जिंदगी कुछ काम की नहीं रहती हो, बेकार जिंदगी रहती हो। जब से यहाँ जुड़े, जब से जिंदगी हमारी बहुत बढ़िया रही। लगभग 1400 रुपए से उन्होंने इस तामीर के काम की शुरुआत की। सिलसिला ये था कि 10-12 नौजवान यहाँ पर बैठते थे, लोगों से चंदा मांगते थे और मजार की तामीर करते थे। लगभग इस पुरानी दरगाह का रिनोवेशन तो किया ही, साथ में इसको बढ़ाया भी। 11 फीट आगे आगे चारों तरफ से बढ़ाया है, कंक्रीटिंग किया है। इसके अंदर सभी मजहब के लोग ने अपना ताउन किया है। दूसरी खूबी की बात यह रही कि मैं तो ये कहूंगा, मेरा अकीदा है कि हजरत ने ही सबको दिलों में ये अपने जज्बा पैदा किया कि यहाँ पर आके बैठो। सभी काम धंधे वाले, सभी रोजगार पेशा लोग हैं, मगर यहाँ पर 8 से 10 घंटे हजरत की इसी पेड़ियों पर बैठकर चंदा मांगते थे और बड़ा दिल से काम करते थे। हिंदुस्तान को मुश्तरका तहजीब का मुल्क कहा जाता है। इस मुश्तरका तहजीब को फरोग देने में सूफिया ने कलीदी किरदार अदा किया है। इस तहजीब का सनावत जीता जागता नमूना है। आस्ताने आलिया के लिए रास्ता 3 तरफ से जाता है। 2 तरफ से रास्ता दरगाह की जानिब रास्त तौर पर जाता है, जबकि तीसरी जानिब का रास्ता सेतला माता के मंदिर से होकर दरगाह को जाता है। ये एक ऐसी दरगाह है जहां पर हिंदू जायरीन मंदिर में दर्शन करने के बाद आस्ताने आलिया की जियारत के लिए जाते हैं। हिंदू अकीदतमंदों की मुश्किलात को देखते हुए दरगाह के खुद्दाम ने दरगाह से मंदिर जाने के लिए न सिर्फ रास्ता हमवार किया, बल्कि सीढ़ियां भी तामीर की हैं। यहाँ के लोगों को अपनी इस मुश्तरका तहजीब पर नाज है। यही नहीं, अगर हम तारीख के औराक को देखते हैं तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि हजरत शाह जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के औसाफ और कश्फ व करामात से मुगल शहनशाह औरंगजेब बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने यहाँ पर 2 दिन क़याम भी किया। यही नहीं, आपके कश्फ व करामात से मुतासिर होकर बाजीराव पेशा दोम ने दरगाह के लिए सनद और 17.5 एकड़ जमीन बतौर नजराना पेश की थी। आस्ताने आलिया को बाजीराव पेशा ने जो आराजी पेश की थी वो आज भी दरगाह के पास है। दरगाह का जो भी सज्जादा नशीन होता है वही इसकी देख रेख करता है और इसकी आमदनी से दरगाह के मसारिफ तय होते हैं। हजरत जमालुद्दीन रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना यहाँ पर बहुत कदीम है, लेकिन आस्ताने आलिया पर उर्स की तकारीब का आगाज 20वीं सदी की पहली दहाई से हुआ और इसको भी शुरू करने में गैर मुस्लिम भाइयों ने कलीदी किरदार अदा किया। हजरत जमालुद्दीन रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सनावद में रिवायती तुस्को एहतिशाम के साथ मनाया जाता है और बरसों पहले जिन कदीम रिवायतों के साथ उर्स शुरू किया गया था वो कदरें आज भी बरकरार हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत और आज हम मौजूद हैं सनावद में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना हजरत शाह जमालुद्दीन रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने की फयूज़ बरक़ात की बात करें, कश्फ व करामात की बात करें तो वो दूर दूर तक मशहूर है। क्या है यहाँ कश्फ व करामात, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत।
developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. रण की रेत पर रक्त से रची प्रेम की दास्तां। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ETV उर्दू पर जस्टिस GS सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबा अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे। फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन जिस आस्ताने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्ताना हज़रत शाह जमालुद्दीन रोशन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। क्या है यहाँ के कश्फ करामात, आइए डालते हैं एक नजर। पीराने पीर हजरत शाह जमालुद्दीन रोशन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह को कुतुब निमाड़ के लक़ब से भी याद किया जाता है। निमाड़ में खरगोन, बड़वानी, बड़वा, खंडवा की बात करें तो आपकी तालीम किसी से पोशीदा नहीं है। तारीख के औराक में आपको कुतुब सालिकीन, सुल्तानुल आरिफीन, दिलबर पंचतन, जान मौला अली के नाम से भी याद किया गया है। हजरत जमालुद्दीन रोशन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना रुश्द हिदायत का सरचश्मा कहा जाता है। आपके आस्ताने पर रोजाना करामात का ज़ुहूर होना बताया जाता है। आस्ताने से वाबस्ता हजरात की कोशिश है कि पीरान पीर हजरत जमालुद्दीन रोशन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को दूर दूर तक पहुँचाया जाए ताकि अवाम उनकी तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगियों को खूबसूरत बना सके। शाम में 12 बजे बंद होती है, सुबह से खुल जाती है 6:30 बजे से। सुबह जब खुलती है तो फिर क्या क्या करते हैं आप दिन भर के बाद शेड्यूल बताएं? सुबह आते से हम सरकार की साफ सफाई है, वो जो मेंटेनेंस है अच्छी तरह से संभालते हैं। जी मैं यहाँ पे 2002 से खिदमत में हूँ सरकार के यहाँ, और सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पे 2-3 मुरादें पूरी होती देखी है। एक जो ये 117 पेड़ी है, सबसे ज्यादा इस पेड़ी पे नारियल फूटते हैं, नारियलों की मुराद सबसे ज्यादा पूरी होती है। और दूसरा तोला दान, बच्चों के तोले दान भी यहाँ साहब बहुत ज्यादा होते हैं। हजरत जमालुद्दीन रोशन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का जादू आपके अक़ीदतमंदों पर सर चढ़कर बोलता है। बुजुर्गान दीन ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिस तरह से इंसानी खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया है, उसको देखते हुए लोग बिला लिहाज क़ौम मिल्लत सूफिया के आस्थाने पर आकर हाजिर देते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। हजरत जमालुद्दीन रोशन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंद सिर्फ निमाड़ वस्त हिंद ही नहीं बल्कि मुल्क व बैरुल मुल्क में फैले हुए हैं।
حضرت جمالدین روشن قادری رحمتullah علیہ کا عرس ہر سال اس کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن یہ عرس عربی مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انعقاد ہندی مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس عرس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا اہتمام 1904 میں ایک ہندو عقیدت مند کے ذریعے شروع کیا گیا تھا۔ موجودہ میں اس کا انعقاد نگر پالکا کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس کی تمام تقاریب کے ساتھ میلے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ 108 ورष ہو چکے ہیں اس عرس کو۔ پہلے نگر پنچایت بناتی تھی، اب نگر پالیکا اس عرس کا سنچالن کرتی ہے، اور یہ عرس اردو تاریخ کے علاوہ ہندی تاریخوں کے ذریعے چلتا ہے۔ اور اس مزار سے میری یہ نسبت ہے کہ میں نے جب سے بھی اپنی عمر میں دانشمندی پائی، مطلب جب سے اس مزار سے نسبت ہے میری یہ کہ جب بھی جو چیز کی طلب کی ہے اس طلب سے زیادہ پایا ہے۔ حضرت جمال الدین روشن قادری رحمتullah علیہ کے آستانے کی تعمیر جدید کے بعد محفل سما اور رنگ کی محفل کا بھی انعقاد شروع ہوا۔ عرس کے موقع پر محفل سما میں شرکت کو یہاں کے قوال اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ حضرت جمال الدین روشن قادری رحمتullah علیہ کے ارادت مندوں میں بلا لحاظ قوم ملت تمام قوموں کے لوگ شامل ہیں۔ یہاں کی اس مشترکہ تہذیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہاں کے لوگ، آپ خود سنیے۔ اس درگاہ پر آ کر اپنا سر نہیں جھکاتا ہے، گھر کی دہلیز کے اندر داخل نہیں کرتے، چاہے کسی بھی مذہب کے لوگوں، یہ ہر قوم کے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر گروار اور رویوار کو بہت ساری پبلک آتی ہے یہاں پر درشن کرنے، اور بہت سکون ملتا ہے یہاں آنے کے بعد۔ ناظرین، حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمتullah علیہ کے آستانے پہ مبنی ہمارا یہ خاص پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھ بھیجیے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر کسی ایک خاص ایپیسوڈ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ہندوستانی عدلیہ کو درپیش ہیں بڑے چیلنجز، آخر کیا ہے ان کا حل؟ ETV اردو پر جسٹس GS سنگھوی کی صدارت میں مباحثہ، شعبہ عدلیہ کی نامور شخصیات ہوں گی موجود۔ چیلنجز بیفور انڈین جوڈیشری، 26 دسمبر دوپہر 3 بجے ہوٹل کلارکس آمیر سے راست ٹیلی کاسٹ صرف ETV اردو پر۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر۔ اردو پر اگلا پروگرام۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं
सबसे अच्छा हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वजीर आला की हैसियत से सनीचर को लेंगे हलफ। 3 जनवरी को साबित करनी होगी अक्सरियत। केजरीवाल ने 15 दिन के अंदर लोकपाल बिल लाने का किया वादा। कानून पास करने के लिए मरकज की मंजूरी के लुजूम पर उठाया सवाल। गुजरात पुलिस ने कर्नाटक में भी लड़की की जासूसी कराने की थी कोशिश। बीजेपी ने मरकज पर सियासी साजिश का लगाया इल्जाम। फौज ने कश्मीर के मचल फर्जी इनकाउंटर में 6 जवानों को ठहराया मुलजिम। कोर्ट मार्शल का दिया हुक्म। और जैक कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट से सुबुकदोश होने का किया ऐलान। डरबन में खेलेंगे विदाई मैच। सबसे पहले बात आपकी हुकूमत की। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल आइंदा शनिचर को दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। 45 साल अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पर आम आदमी पार्टी के दीगर 6 अरकान असेंबली के साथ ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले अहकामात के मुताबिक हलफ बर्दारी के 7 दिन बाद यानी 3 जनवरी को केजरीवाल को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी होगी। दिल्ली में हुकूमत साजी का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की तजवीज को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सदर जमहूरिया ने हिदायत दी है कि हलफ लेने के 7 रोज के अंदर अरविंद केजरीवाल को असेंबली में अक्सरियत साबित करना होगा। रामलीला मैदान में हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कौशाम्बी में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जन लोकपाल उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और तमाम रुकावटों को दूर करके 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल को पास कराया जाएगा। करेंगे पास 15 दिन में, सारी अड़चने पास दूर करेंगे। ऐसी क्या बात है? 15 दिन में हम ऐसे चुप थोड़ी बैठेंगे। आप देखते जाइए, सारी चीजें मैनेज होंगे। ये पूरा का पूरा इस देश को आजाद कराने की लड़ाई है, तो जितनी अड़चने आएंगी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अड़चने नहीं आएंगे। जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते में अड़चने तो बहुत आएंगे। आम आदमी पार्टी ने फिर जोर देकर कहा है कि कांग्रेस के साथ उनका कोई इत्तेहाद नहीं है और कांग्रेस की हिमायत 18 नुकाती एजेंडे पर मबनी है। केजरीवाल ने पार्टी के अंदर बगावत और किसी रस्साकशी से भी इनकार किया है। विनोद कुमार बिन्नी ने भी इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि वो पार्टी से नाराज हैं। कंट्रोवर्सी आप ही लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा था किसी दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अपनी। वो बाइट है उनकी, दिखा दो। मैंने तो कोई बाइट नहीं देखी। ऑफर होना ना होना तो बात की बातें हैं कि भाई कहीं नाराजगी हो, हम कुछ मांग रहे हो। हम यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, कोई यहाँ मंत्री बनने नहीं आया। एक देश की और इसकी व्यवस्था बदलने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, उसमें किसी का मकसद मंत्री बनना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हलफबर्दारी तकरीब में समाजी रहनुमा अन्ना हजारे, समाजी कारकुन किरण बेदी और संतोष हेगड़े को मदऊ किया है। वाज़ेह है कि रामलीला मैदान से ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल की आवाज बुलंद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बाहर से हिमायत करने का वादा किया है और पार्टी इस वादे को निभाएगी। जी ने और हमारे तब के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने एक चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस जो है वो आपको आउटसाइड सपोर्ट दे रही है। और अभी तक की स्थिति में हम जो हमारे इन दोनों नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, हम उस पर स्टैंड करते हैं।